अच्छा, पेज नंबर चलते कि नहीं कि ना 218 218 electromagnetism. Topic number first, magnetic field due to current. MCQ number first, Earth has internal magnetic field whose south is always geometric north. Option number A, हमेशा के लिए geometric north होगा, वरना चलते बुक रवा ले जाना दिलते देना वाले वर्ष ज्योमेट्रिक क्या होगा, नॉर्थ होगा. अगर वहां पे आ जाए whose north is always geometric, फिर क्या होगा, साउथ, यहाँ पे नॉर्थ होगा फिर. ठीक है, मतलब नॉर्थ का साउथ और साउथ का नॉर्थ अपोजिट होगा. नंबर 2, द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इज आयरन, स्टील, ऑक्साइड्स या मोशन ऑफ चार्ज. मोशन ऑफ चार्ज. Number 3, the origin of magnetism is because of spin motion of electron, angular motion of electron, orbital motion of electron, both spin and orbital motion of electron. Option number D. Number 4, when temperature given to magnetic field, magnetic material it lost its magnetism because random motion of electron. Magnetic field is directly proportional to temperature. Hammering या electric charge will burn. Option number A, random motion of electron. उसके वजह से क्या करता है, ये lost करता है अपना magnetic material. बोली हाँ, अच्छा. Next, number 5, the direction of magnetic field lines of force around a current carrying conductor is determined by right hand rule. Option number A. Number 6, the experimental demonstration of the existence of magnetic field around a current carrying conductor was given by Oersted. Option number D. Number 7, the magnetic field lines inside a magnetic is from south to north, from north to south, from south to north, both of them or none of them. Option number B, from south to north. Inside और outside क्या होगा, from north to south. Number 8, photons while passing through a magnetic field are deflected toward north pole, are deflected toward south pole, are not affected by magnetic field or ionized. Photon तो energy है तो कोई इफेक्ट इस पर नहीं होता, सो लिहाजा ऑप्शन नंबर सी और इज द करेक्ट वन. Number 9, when downward current flow in a straight vertical conductor, the direction of magnetic field is what? Clockwise. देखो, when downward current flow in a straight vertical conductor, ठीक है, vertical conductor है, इसमें current flow जो है downward motion करता है, तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, इस तरह फाइंड करेंगे, डाउनवर्ड. ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सॉरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा. देखो ये डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज. ठीक है, अगर ये अपवर्ड हो जाए तो फिर डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा. नंबर 10, फील्ड इन विच the magnetic field lines are parallel and equally spaced is called uniform magnetic field. Number 11, in case of bar magnet, line of magnetic induction is what? Run continuously through the bar and outside. Yeah, start from north pole and end at the south pole. Yeah, emerge in circular path from middle of the bar magnet. Yeah, are produced only at the north pole like. देखो, in case of bar magnet, line of magnetic field start from north pole and end at the south pole. Option number A. Number 12, a long magnet is cut in equal parts in such a way that the ratio of the length is 2:1. The ratio of magnetic field strength of both the part is equal. Does not affect नहीं होगा. Number 13, two lines of field due to a bar magnet is what? Do not intersect at all. Option number D. Number 14, the magnet can completely demagnetized by heating it slightly. हीटिंग की वजह से ये क्या होता है, अपना मैग्नेटाइजेशन लॉस करता है, सो लिहाजा ऑप्शन नंबर बी होगा. नाउ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी, द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, डायमेंशन हम किस तरह मालूम करेंगे, F इज इक्वल टू
ILB। सो B इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई IL। ये हो गया न्यूटन डिवाइडेड बाई मीटर मल्टीप्लाई बाई एम्पेयर। ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर एम्पेयर मल्टीप्लाई बाई मीटर। ठीक है, सो मीटर मीटर ख़त्म, किलोग्राम पर एम्पेयर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या होगा, m l पावर 0 t पावर -2 एंड a पावर -1। ऑप्शन नंबर कौन सा है वो टिक करें, ऑप्शन नंबर बी। गॉस इज द यूनिट ऑफ, गॉस किस चीज़ का यूनिट है, किसी भी चीज़ का यूनिट नहीं है, क्योंकि गॉस शो द नेम ऑफ साइंटिस्ट नन ऑफ अबव। ठीक है, अगर यहाँ पे हम स्मॉल g से डिनोट करें तो फिर b का यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का है। नंबर 3, विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होगा इसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑप्शन नंबर डी। Number 4, magnetic field intensity is defined as magnetic moment per unit volume, number of line of passing per unit length, number of line passing per unit volume या magnetic flux per unit area। ऑप्शन नंबर डी, magnetic flux per unit area। देखो ये है ना, आप लोगों ने पढ़ा है magnetic flux is equal to B dot A। सो B क्या होगा, B is equal to magnetic flux per unit area। Now next, Number 5, किलोग्राम पर एम्पेयर पर सेकंड स्क्वायर इज द बेस यूनिट ऑफ ऑल ऑफ अबव। ठीक है, ऑल ऑफ अबव। मैग्नेटिक इंडक्शन भी हम कह सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी हम कह सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी हम देख सकते हैं। नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट शो द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला, वेबर पर मीटर, गॉस या ऑल ऑफ अबव। ये वेबर पर मीटर स्क्वायर करें। ठीक है, सो ऑप्शन ऑल ऑफ अबव होगा। नंबर 7, if the magnetic flux is expressed in Weber, then the magnetic induction can be expressed as Weber per meter square। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी टिक करें लेकिन मीटर स्क्वायर करें, ये मिसप्रिंट हुआ है। नंबर 8, मैग्नेटिक इंडक्शन इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, बोथ ऑफ अबव या नन ऑफ अबव। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, स्केलर है या वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है जी, ये है ना B डॉट A है ना, सो मैग्नेटिक इंडक्शन है ना, सो B क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ऑप्शन नंबर B। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 पावर 4 गाज, ऑप्शन नंबर A, और 1 गाज इज इक्वल टू 10 पावर -4 टेस्ला। नंबर 10, द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, ये वाला न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू अ स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड, अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। नंबर 2, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। नंबर 3, व्हेन द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड वेक्टर एरिया इज 90 डिग्री देन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज 0, क्योंकि B डॉट A है और B डॉट A क्या देता है, BA cos ऑफ थीटा। जब ये 90 हो जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा कौन सा है, नंबर 4, नंबर 3 किधर गई, अच्छा अच्छा, नंबर 4 क्या है, द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फ्लक्स टू मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स एट 60 डिग्री। देखो ये मैक्सिमम कब होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू BA की जगह अगर मैं पुट करूं मैक्सिमम फ्लक्स और यहां पे पुट करूं cos ऑफ थीटा, कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, जब एंगल 0 डिग्री हो। तो इससे B आता है कि नहीं आता, तो इसकी जगह मैंने पुट किया। अब रेशियो मांग रहा है इन फ्लक्स B इंस्टेंटेनियस डिवाइडेड बाई फ्लक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू cos ऑफ 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/2 या 1 डिवाइडेड बाई 2 या 0.5। Number 5, at which angle of magnetic flux is minimum, 0, 90, 270 या both B and C, both B and C। 90 पर ये क्या देता है, 0, 270 पर ये क्या देता है, 0। Number 6, magnetic flux can be measured in term of Gaussian system is Maxwell, ऑप्शन नंबर A, और 1 वेबर बराबर है 10 पावर 8 मैक्सवेल के।
नंबर 7, बेस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज व्हाट? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर पर सेकंड स्क्वायर। आप लोग इसी फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर से। जॉल पर एम्पेयर गिव द सेम डायमेंशन एज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स देखो, ये हो गया फ्लक्स B इज इक्वल टू बी ए, हम लिखते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर लिखते हैं। टेस्ला किस चीज़ के बराबर है? न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, तो हम लिखते हैं न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर। तो इसको हम ख़त्म करते हैं। देखो न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, न्यूटन मीटर क्या आ गया? जॉल पर एम्पेयर। तो जॉल पर एम्पेयर किस चीज़ का यूनिट देता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का देता है। देता कि नहीं देता? नंबर 9, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जब आपने ये फाइंड किया, सो न्यूटन बराबर है, ये करें किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर। सो m L square t power minus 2 a power minus 1 is the dimension of magnetic flux. What will be the magnetic flux when the angle between magnetic field lines and surface area is 30 degree? तो पुट करें आप लोग। नंबर 11, a bar magnet is placed in a closed surface. The net magnetic flux will be 0. बार मैग्नेट अगर हम क्लोज सरफेस पे पुट करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये तो पास नहीं होता ना। 1 वेबर इज इक्वल टू 10 पावर 8 मैक्स जूल, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 13, न्यूटन पर मीटर, अच्छा न्यूटन मीटर पर एम्पेयर इज द डिराइव यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये न्यूटन मीटर पर एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। Next one, motion of charged particle in uniform magnetic field. Number 1, velocity of electron and uniform magnetic velocity of electron and uniform charged particle, uniform magnetic field है, ठीक है ना? Uniform magnetic field, charged particle is greater than velocity of proton. क्या होगा? Mass of electron is greater than mass of proton, mass of proton is smaller than mass of electron, या both have same masses, या none of above. Mass of proton is smaller than mass of electron, या mass of electron is smaller than mass of proton, ऑप्शन नंबर 8। mass of electron क्या है? ये स्मॉलर है, किस चीज़ से? mass of proton से। एक का है 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 31 kg और दूसरा है 10 पावर माइनस 27 kg में। प्रोटॉन का क्या है? 10 पावर माइनस 27 में है कि नहीं है? और इलेक्ट्रॉन का क्या है? 10 पावर माइनस 31। तो इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये वाला, इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट है प्रोटॉन से। Number 2, radius of charged particle in uniform magnetic field is directly proportional to mass, magnetic field, medium, none of above. क्या होगा? मास के साथ इसका ताल्लुक है। देखो आप लोग पढ़ते हैं FC is equal to FB। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो एक चार्ज मोशन करता है, सर्कुलर मोशन, तो ये कंडीशन है QVB is equal to mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ठीक है? तो ये ख़त्म हो जाता है QB इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई आर, या आर इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई QB। तो इससे जाहिर होता है कि मास के साथ इसका ताल्लुक क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो वेलोसिटी के साथ भी डायरेक्ट है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी का ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो लिहाजा मास इसके साथ होगा, ऑप्शन नंबर 8। नंबर 3, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज, एंगुलर वेलोसिटी देखो, एंगुलर वेलोसिटी इसी फार्मूले से मैं करता हूँ, QB इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई आर। ज़रा गौर से देखें, QB अपनी जगह पे, V किस चीज़ के बराबर है? आर ओमेगा के बराबर है कि नहीं है? डिवाइड बाई आर, आर आर ख़त्म हो गया, ओमेगा बराबर हो गया QB डिवाइड बाई एम, ऑप्शन नंबर बी। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी देखो, ये क्या है? 2 पाई एफ है कि नहीं है? इज इक्वल टू QB डिवाइडेड बाई एम है कि नहीं है? सो एम के साथ फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक क्या है? इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी। नंबर 5, लीनियर मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये आ गया लीनियर मोमेंटम फाइंड करें, P इज इक्वल टू एम वी। वेलोसिटी क्या होगा? तो ये होगा, मैं यहाँ पे m QB r, या r यहाँ पे शिफ्ट होगा, ज़रा गौर से देखें, वेलोसिटी क्या होगा? QBR डिवाइडेड बाय m हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ QBR डिवाइडेड बाय m, m के साथ ख़त्म, QBR के बराबर है, ऑप्शन नंबर
A. Number 6, a device which is used to accelerate charged particle in a circular path is called cyclotron. Number 7, when a charged particle enter uniform magnetic field, it follow a circular path. The work done by a magnetic force will be 0. Number 8, when charged particle enter uniform magnetic field, which of the following changes kinetic is speed of charge, kinetic energy of charge, direction या all of above? Direction, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, बाकी तो सेम होता है. Number 9, a uniform electric field and uniform magnetic field are produced pointed in the same direction. An electron is projected with the velocity pointing in the same direction. The electron will turn to its right, electron will turn to its left, electron velocity will increase in magnitude, electron velocity will decrease in magnitude. क्या होगा शाबाश? क्यों डिक्रीज होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा. देखो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में मैंने इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी डिक्रीज होगा. क्यों डिक्रीज होगा जनाब? क्योंकि देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है, और इसी डायरेक्शन में मैंने इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया नेगेटिव की तरफ, तो क्या हो जाएगा? इसका वेलोसिटी डिक्रीज है बिकॉज ऑफ रिपल्शन, क्योंकि ये इस पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है. तो जैसे जैसे ये नज़दीक जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये वापस आएगा, तो इस वजह से इसका स्पीड डिक्रीज होगा. नेक्स्ट, नंबर 10, टू पार्टिकल्स x and y having equal charges, ठीक हो गया, after being accelerated through the same potential difference, v भी same है, enter a region of uniform magnetic field and describe circular path of radius r1 and r2. अच्छा, 1 r नहीं है and 2 r नहीं है, ये r1 और r2 है, ठीक है, r1 and r2 respectively. The ratio of the mass of x is that of y is r1 divided by r2 whole 1 by 2, या r2 divided by r1, या r1 divided by r2, या r2 divided by r1. x और y है, तो क्या होगा? r के साथ इसका ताल्लुक क्या है? इनवर्स है कि नहीं? मास और r के दरमियान ताल्लुक क्या है? डायरेक्ट है. सो जब ये डायरेक्ट है तो ये हो गया x1 और डिवाइडेड बाय y, ये होगा r1 डिवाइडेड बाय r2. ऑप्शन कौन सा है? सी. Number 11, the radius of curvature of path of the charged particle, किधर गया? The radius of curvature of the path of the charged particle uniform magnetic field is directly proportional. Radius किसके साथ डायरेक्टली रिलेशन है? ऑप्शन नंबर ए, the charge on a particle, the momentum of the particle, the energy of the particle, the intensity of the field. किस चीज़ के साथ है? देखो, इस चीज से हम r को निकालते हैं, आएगा क्या? r इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी. अगर मैं कहूँ r इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई क्यू बी, क्यू और बी कॉन्स्टेंट है, सो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम के साथ इसका ताल्लुक क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है. नंबर 12, a proton mass m charge e and alpha particle mass 4m and charge 2e are projected with same kinetic energy and at right angle to uniform magnetic field. Which of the following statement will be true? The alpha particle will be bent in a circular path with small radius that of for proton. Yeah, the radius of the path of the alpha particle will be greater than that of the proton. The alpha particle and proton will be bent in a circular path with same radius. या none of above. Radius तो same होगा ना, क्या नहीं different होगा? क्यों? जी सेम होगा. मास पे डिपेंड करता है, रेडियस के नहीं करता. फिर काइनेटिक एनर्जी के साथ करें, कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इसका कांस्टेंट है, फिर कौन सा रिएक्शन होगा? देखो, काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ एम, वी का वैल्यू क्या है? क्यू बी आर डिवाइड बाई एम, तो ये होगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर. ये ख़त्म हो गया. यहाँ पे क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. गौर से देखें, ये होगा क्या?
ये चीज़ कांस्टेंट है। तो इन दोनों का ताल्लुक क्या है, आर और इनके दरमियान डायरेक्ट है। आर स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम लिखूँ, कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ा। इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, तो क्या होगा, R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाई M2। M1 भी गिवन है और M2 भी गिवन है, ठीक है। तो दोनों इस फार्मूले से सॉल्व करें और फिर क्या करें, दोनों पे अंडर रूट ले लें। A charged particle moving a uniform magnetic field experience a resultant force। एक charged particle uniform magnetic field में क्या फील करता है, a resultant force in the direction of field, in the direction opposite to the field, in the direction perpendicular to the both field and its velocity, या none of above, in the direction of perpendicular to both the field and its velocity। देखो सर्कुलर पाथ में ये कब होगा, जब एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 14. If the direction of initial velocity of the charged particle is neither along nor, अच्छा, neither along मतलब parallel, neither perpendicular, न parallel है न perpendicular है, to data of magnetic field, then the orbit will be helix। मतलब कौन सा रेंज बताता है कि 90 से कम और 0 से ग्रेटर। नेक्स्ट, particle having positively charged क्या है, occasionally come with a high velocity from the sky toward the earth, ठीक है। On account of magnetic field of the earth, they would be deflected toward the north, south, east या west। Particle having positive charges ऊपर से high velocity के साथ आ रहे from the sky toward the earth। On account of magnetic field of earth, earth का खुद में magnetic field है कि नहीं है, ठीक है। They would be deflected toward north, साउथ, ईस्ट या वेस्ट। ये तो डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा, किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा जी, इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, या दोनों चार्जेस आ रहे हैं इस तरह, ठीक है। हाई वेलोसिटी के साथ ये नीचे आ रहा है, मतलब खुले हवा रहा, हाँ अच्छा जी, ठीक है। तो यहाँ पे हाई वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहे हैं। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये चार्जेस किस तरह डिफ्लेक्ट होगा, कि इस तरफ डिफ्लेक्ट होगा या इस तरफ डिफ्लेक्टेड होगा। क्यों, इस तरफ डिफ्लेक्शन करेगा तो इस तरफ, ये कौन सा डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। ये बिल्कुल स्काई के इस डायरेक्शन में है, दो पार्टिकल्स हैं डाउनवर्ड आ रहे हैं, ठीक है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो ये है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब ये कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, और चार्ज पार्टिकल भी है, डिफ्लेक्शन तो करेगा कि नहीं करेगा। जब डिफ्लेक्शन करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा, ईस्ट की तरफ करेगा। अगर 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 चलो बनाए, खैर वेस्ट यहाँ पे बनाए, ईस्ट यहाँ पे बनाए, यहाँ पे नॉर्थ बनाए, यहाँ पे साउथ बनाए, आप लोगों की मर्जी है। सुने, अब अगर ये चार्ज पार्टिकल डाउनवर्ड से जा रहा हो हाई वेलोसिटी के साथ, तो फिर क्या होगा, फिर किस तरह डिफ्लेक्ट होगा, फिर इसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगा जो भी है, ठीक है। डिफ्लेक्शन किस तरह करेगा, एग्जैक्टली यही है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम मालूम कर दे। देखो देखो सिंपल अल्फाज में बताता हूँ, चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो जब चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ आता है तो करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। जब ये डाउनवर्ड होता है, ठीक है, तो डायरेक्शन क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। जब ये क्या हो गया, डाउनवर्ड, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये क्लॉकवाइज होगा, तो इसको मूव करेगा इस डायरेक्शन में। अगर दोनों अपवर्ड जा रहे हैं तो इसको मूव करेगा इस डायरेक्शन में। बस पलक वही चीज़ सही। अच्छा 16 भी इसी तरह है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर है, करे खुद से। 17, a strong magnetic field is applied on a stationary electron, then electron move in the direction of field, the electron move in opposite direction, the electron remains stationary, the electron starts spinning. Strong magnetic field is applied on a stationary electron. No change. Magnetic field selection. So the electron remains stationary.
om daga dike na gorai velocity given na perpendicular to uniform magnetic field de b by ki given de suddenly intensity of magnetic field reduced to b by 2 sara no radius माने में साथ सेट होगी फार्मूले में रहता है लिख ना r और b से सता लगता है इनवर्स रिलेशन में बस मालूम। Number 18, a uniform magnetic field acts as a right angle to the direction of motion of electrons. ठीक है, as a result the electron move in a circular path of radius 2 cm. If the speed of electron is double then the radius of the circular path. जब देखो क्यों b is equal to mv divided by r, अगर इसको हम डबल करें तो ये भी डबल हो जाएगा ना, ठीक है। अगर इसको हम डबल करें मतलब पहले 2 है फिर हमने 4 बनाया तो ये कितना होगा 4 होगा। 19, deuteron of kinetic energy 50 kilo electron volt is describing a circular orbit of radius 0.5 meter in a plane perpendicular to uniform magnetic field, ठीक है। The kinetic energy of proton they describe a circular orbit of radius 0.5 meter in the same plane with the same magnetic field is what, क्या होगा तो kinetic energy का relation ये मौजूद है, इसमें पुटिंग करें। 20, if a proton is projected in a direction perpendicular to uniform magnetic field with velocity v and electron is projected along the lines of force, so what will happen to proton and electron? So proton will move in a circle with constant speed and there will be no effect on the motion of electron. क्यों फर्क क्या है, वजह क्या है? A proton is projected in the direction of perpendicular to uniform magnetic field with velocity v and electron is projected along the lines of force. What will happen to the proton and electron? देखो प्रोटॉन हमने परपेंडिकुलर भेजा सर्कुलर मोशन और ये इस पे असर नहीं पड़ रहा, किस चीज़ पे? इलेक्ट्रॉन पे, ये तो हेलिक्स फॉर्म में चली जाएगा। 21, a proton or charged particle moving with velocity v is acted upon by electric field intensity E and magnetic field E. B. The proton will move undeflected. undeflected का मतलब डिफ्लेक्ट नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। If E, B और mutually perpendicular, ठीक है, V is equal to E divided by B, velocity select रहे, ऑप्शन नंबर C। 22, if proton, neutron, alpha particle are being accelerated by the same potential difference interperpendicular to uniform magnetic field, the ratio of their kinetic energy, proton, neutron and alpha particle find करें kinetic energy की, जिसका मास ज़्यादा है। So मैं यहाँ पे इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है, और ख़ुद सॉल्व करेंगे इस फार्मूले से। 1:1:2, ऑप्शन नंबर डी। 23, a proton and electron both moving with velocity, same velocity v enter a region of magnetic field directed perpendicular to the velocity of particles. They will move in a circular orbit such that the time period for proton will be higher. Yeah. Time period for electron will be higher. Yeah. Their orbital radii will be same. क्या होगा? Radii will be same होगा. Are you sure? क्यों? तो मास के साथ तो इनवर्स रिलेशन। फिर ओमेगा ना फाइंड करें, ठीक शो मालूम कहीं क्या नखला ओमेगा इज इक्वल टू क्यों भाई दिन मालूम क्या करना 2 पाई डिवाइड बाय टी बशी ना वाले से जुनू मामा नहीं कभी गोरा टाइम जाएगा भाई टी इज इक्वल टू 2 पाई और यहाँ पर राशि m डिवाइडेड बाय क्यों भी, ये टाइम पीरियड है, आप खुद करें। 24, an electron enter magnetic field whose direction is perpendicular to velocity of the electron, then speed of electron will remain same. Number 25, 26, 27, 28, 31 तक खुद करें, ठीक है, यही एक ही चीज़ है, परपेंडिकुलर सारे के सारे परपेंडिकुलर हैं। जनरल एमसीक्यूज और इसके जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हैं ये आप लोग खुद करें।